Hello everyone, hope you all are well and good and working hard for your exams. So, in previous lectures, we studied about what are life processes, nutrition, and modes of nutrition. And hope so you all have learned those topics. So, there are two types of nutritions. What are they? Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So, what I told you about autotrophic, those organisms which make their food themselves are known as autotrophic nutritions and organisms are known as autotrophs. So, green plants make or synthesize their own food, so they are autotrophs. What are heterotrophs? Heterotrophs is made up of two words. Hetero means others and troph means nourishment. So those living organisms who depend on other organisms, or we can say they depend on plants for their food, are known as heterotrophs, and the mode of taking nutrition is known as heterotrophic mode of nutrition. So in today's lecture we'll talk about autotrophic nutrition in detail. So green plants make or synthesize their own food from simple inorganic raw material with the help of sunlight. Okay, what are the raw materials? Raw materials are carbon dioxide, which plants take from atmosphere, and water from soil. Okay, green plants use autotrophic mode of nutrition. You all know this very well. Organism which uses autotrophic mode of nutrition are known as autotrophs. This we already have discussed in previous videos. So plants make their food by a process called photosynthesis. Plants एक process से अपना खाना बनाते हैं and उस process का नाम होता है photosynthesis. Okay. So what is photosynthesis? The process in which green plants make their own complex food with the help of simple inorganic raw materials like carbon dioxide and water in presence of sunlight is called photosynthesis. Photosynthesis एक process है जिसमें green plants एक कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं. सिंपल फूड से क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स फूड. सिंपल रॉ मटेरियल्स से एक कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके, दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है. सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी. क्लोरोफिल इज यूज टू एब्जॉर्व द सनलाइट. अब ये एब्जॉर्व कैसे होगी सनलाइट? क्लोरो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है. तो जो एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इट एब्जॉर्ब्स और ट्रैप्स द सोलर एनर्जी. Carbon dioxide is reduced to carbohydrates and water is oxidized to release oxygen. Okay, ये हम अभी पढ़ेंगे. Water is taken up from the soil through roots. अब water कहाँ से लिया जाएगा? Soil से with the help of roots. Okay. The site where the photosynthesis occurs is known as chloroplast, or we can say photosynthesis takes place in leaves. Okay, leaves के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. तो क्लोरोप्लास्ट contains chlorophyll and the site of photosynthesis is chloroplast in leaves. Okay, so the steps of photosynthesis are as follows. कौन कौन से steps होते हैं photosynthesis के दौरान? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल. सनलाइट को क्लोरोफिल ट्रैप करेगा. देन सोलर एनर्जी जो है या वी कैन से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में. ओके, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन splitting of water molecules takes place.
वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किस में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फाइनली क्या होगा, लास्ट स्टेप, 3 स्टेप्स होते हैं मेनली, 3 स्टेप होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड लास्ट फाइनल क्या होगा, फाइनल स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग एसिमिलेटरी पावर। कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। और कौन सी पावर यूज़ करेंगे इसमें, एसिमिलेटरी पावर इसमें यूज़ होगी। एसिमिलेटरी पावर मीन्स केमिकल एनर्जी इसमें यूज़ होगी। ओके, सो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अब भाई लीफ के अंदर जाएगी कैसे, प्लांट के अंदर जाएगी कैसे, इट एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द स्टोमेटा। एम आई क्लियर? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, बाय प्रोडक्ट होगा। ओके, और लास्ट रॉ मटेरियल इज वाटर, water is taken up by roots from the soil. So my dear friends, how do raw materials for photosynthesis become available to the plant? Raw materials photosynthesis के लिए plant के लिए कैसे available होते हैं? So it is very simple. Water comes from soil. पानी कहाँ से आएगा, soil से आएगा, with the help of xylem tissue in roots and stem. Xylem tissue क्या करेगा, वाटर कंडक्ट करेगा, और वो अदर विद द हेल्प ऑफ रूट्स इट विल ट्रांसपोर्ट्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे लेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कब से स्टोमेटा स्टोमेटा चले जा रहा है, व्हाट इज स्टोमेटा, आखिर होता क्या है स्टोमेटा? सो लीव्स कंटेन स्मॉल ओपनिंग्स नोन एज स्टोमेटा, लीव्स के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, और वी कैन से स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन अकर। स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा टेक carbon dioxide from the environment and gives out oxygen. Okay, and they also help in transpiration. Transpiration का मतलब क्या होता है, ये आपने 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। तो what is transpiration? Simply loss of water in form of water vapors. water का loss होना water vapors की form में is known as transpiration. Okay, स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये 2 बीन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स। ओके, अभी हम इनका फंक्शन बताएंगे कि गार्ड सेल्स क्या करते हैं। विच गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये क्या किस में हेल्प करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। गार्ड सेल्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स के अंदर भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट में स्टोमेटा में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल इनको क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए होते हैं। When guard cell uptake water from surrounding, जब guard cell सराउंडिंग से पानी ले लेता है तो they become swell और टर्जिड हो जाते हैं, बहुत टर्जिड बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो बड़ी हो जाती है, तो इट कॉजेज स्टोमेटल ओपनिंग। और जब वाटर इज रिलीज्ड, जब जैसे ही गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, दे बिकम फ्लैसिड, मतलब वो श्रिंक हो जाएंगे। जैसे ही कोई चीज़ श्रिंक होती है तो क्या होगा, वहाँ का सर्फ स्पेस भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, श्रिंक होके दोनों गार्ड सेल एकदम पास पास आ जाएंगे, तो इट कॉजेज स्टोमेटल क्लोजिंग। एम आई क्लियर? सो
व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं? सो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेंगे और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे. लूजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, और बहुत सारा वाटर भी लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान. माय डियर फ्रेंड्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज एनर्जी कन्वर्टर्स? क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टर्स क्यों कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज एनर्जी कन्वर्टर्स बिकॉज दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. एम आई क्लियर? नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? भाई हमने पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, लेकिन अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स. फोटोसिंथेसिस एक मेन तरीका होता है जिससे सोलर एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल करवाई जा सके. ओके, ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड. हमें पता है हमारे इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? खाना प्रोड्यूस करते हैं. सो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड. तो अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी तो अदर ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करेंगे? हेंस फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. So the process of photosynthesis also help in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in air. photosynthesis किस में हेल्प करता है? एक बैलेंस मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का. ओके, कैसे मेंटेन करता है? जितनी भी प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली है उतनी ही ऑक्सीजन वो रिलीज करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर. ओके, so they maintain the balance of carbon dioxide and oxygen in air. So हम photosynthesis को summarize कर सकते हैं with the help of a reaction. तो photosynthesis की reaction क्या होती है? In this figure, this is a chemical reaction for photosynthesis, but ये balanced नहीं है, it is unbalanced. मैं आपको balanced equation बताती हूँ. What is that? 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll give rise to C6H12O6. C6H12O6 को हम शुगर भी बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं. कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं ग्लूकोज लिखा होगा, कहीं कार्बोहाइड्रेट, कहीं शुगर. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन के मोल्स रिलीज होंगे. ओके, so this is all about autotrophic nutrition and photosynthesis. So in our next video we'll discuss about heterotrophic mode of nutrition. Thank you. Or if you are having any doubt, you may ask me in comment section. Thank you again for listening and watching my video.